Hello students, let us continue our exercise 1.2. Question number 7 I am taking first. This question is regarding finding deciles, and in which you have to find D9 and D20. But student, there is one misprint. D20 possible नहीं होता है. You can understand, you can also identify the mistake. Here, instead of D20, please correct here, and this is nothing but P20. That is a misprint. If you have this type of error in your textbook, please have this correction properly. So calculate D9 and P20 of the following distribution, which is data is given in terms of class interval, students, and this is information regarding length in inches, that is our variable x, and number of units, that is the information regarding frequency. So this is our frequency, and this is our class interval, which is our x. So let us start our solution, in which we first make this table. That first column represents length, unit in inches, which is our class interval in terms of x variable, and next number of units, this is our frequencies. So 0 to 20, 20 to 40, 40 to 60, 60 to 80, 80 to 100, and last 100 to 120. Student, there are class intervals having gap of 20 units, and corresponding frequencies are 1, 14, 35, 85, 90, and 15. Now, as you know, we have to prepare a column called less than cumulative frequency. First frequency is 1 as it is. Then next frequency you to add 15 plus 35, 50 plus 85, 135, 135 plus 90, 225 plus 15, 240. So this way, this final value will be the total of frequency column. And from table, we get information about capital N, that is sigma F as 240. And now we have to find out first D9. So जो भी आपको पार्टीशन वैल्यू फाइंड करना है, उसका पहले आपको क्लास ढूंढना पड़ेगा, बिकॉज दिस इज अ डेटा रिगार्डिंग क्लास इंटरवल. सो D9 के लिए सबसे पहले हम
D9 class obtain करेंगे. What is the formula for D9? It is a ninth decile. So 9 into capital N upon 10, because deciles out of 10. 10th observation, or you may say value, 9 into 240 upon 10th value. 10 cut. 24 into 9, 216th value. Students, 216th value is our D9 class we obtained, and now you have to see this 216 in less than CF column. आइए, 216 will come after 135 and before 225. So after 135 वाला जो slot है, ये मुझे कंसिडर करना है रिगार्डिंग D9 class. और स्टूडेंट्स, therefore D9 class is, क्या क्लास इंटरवल आया है? ओके, 80 to 100. 80 to 100. और स्टूडेंट, आपको सबको मालूम है, लिखने की जरूरत नहीं, जो आप डायरेक्ट टेबल से सब्स्टिट्यूट करोगे फॉर्मूला में. So this 80 is lower limit L1, 100 is upper limit L2, 90 is your frequency because you are in frequency column, तो वो आपका F होगा, frequency 90, and CF वैल्यू आपका 135 होगा. जो CF लेस देन CF का वैल्यू यहाँ आ रहा है, उसके प्रीवियसली आपको वो वैल्यू देखना है, प्री लेस देन CF वैल्यू, दैट इज 225 हमारा D9 क्लास का वैल्यू आया है, उसके प्रीवियस मतलब 135 इज योर CF वैल्यू. तो ये डायरेक्टली हम सब्स्टिट्यूट करेंगे. बिफोर दैट वी फर्स्ट राइट डाउन द फॉर्मूला. D9 L1 plus 9 into N upon 10 minus CF whole upon F into L2 minus L1. So L1, that is the lower limit, 80 plus 9 into N upon 10. ये 9 into N upon 10 तो आपने यहाँ फाइंड आउट किया ही है, that is 216. वो यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे, 216 माइनस CF वैल्यू. अभी हमने टेबल में हाईलाइट किए हैं सब वैल्यू. 135 इज योर CF वैल्यू. सो 135 अपॉन फ्रीक्वेंसी क्या है? 90. That will substitute into L2 minus L1, that is 100 minus 80. ओके, तो आप इसको सॉल्व कीजिए. 80 प्लस 216 minus 30, 135, that is 81 अपॉन 90, और ये डिफरेंस 20. 10 कट, 9 9 81, and it will be 80 plus, ये जो 9 बचा है उसको ये 2 से मल्टीप्लाई करना है, 18. And finally 80 plus 18 will be 98. So this is information regarding D9, which is 98. And as you know, your information of length is in inches, so units you have to write down 98 inches. So this is your first answer completed about 9th decile.
अब हमने क्वेश्चन में देखा कि हमको P20 भी पूछा है, ये जो हमने करेक्शन किया, D20 तो हो नहीं सकता है, कॉमन सेंस है। D9 इज अ लास्ट डिसाइल, नाइन्थ डिसाइल, तो गलत प्रिंट हुआ है, दैट इज P20, 20th percentile. So let us find out second one, that is P20. So first we will obtain P20 class. What will be the formula? 20 into n upon 100th value. आपने आगे कैपिटल एन टेबल में टोटल 240 कंसिडर किया है, so 20 into 240 upon 100, percentile out of 100, 1 0 cut, another 1 0 cut, so 2 into 24, that is 48th value. We are getting what? 48th value. Now student, you to see this 48th value in your less than CF column. 48 किसके बाद आएगा? तो 15 के बाद आएगा और 50 के पहले आएगा. 50 के पहले आता है ना 48, और 15 के बाद आता है. So this is a slot I will highlight about P20 class. Okay, this is my P20 class. और इसके अंदर से हमको ये सब इंफॉर्मेशन मिलेगा. L1 that is 40, L2 that is 60, frequency that is 35, and CF value will be 50 से ऊपर वाला आएगा previous value that is 15, वो आपका CF का वैल्यू आएगा. And now you have to substitute in the formula. First I will write down the formula P20. So starting same, L1 plus 20 into n upon 100 minus CF upon F into L2 minus L1, L2 minus L1. ओके, तो सब्स्टिट्यूट करना है सब. आपने 40 to 60 आपका P20 क्लास नक्की करके रखा हुआ है, उसमें 40 आपका लोअर लिमिट है. L1 40 प्लस 20 इंटू एन अपॉन 100, ये आपने ऊपर कैलकुलेट किया ही हुआ है. 20 into n upon 100, that is 48. So directly you can substitute 48 minus CF हमने नक्की करके रखा है, that is 15 minus 15 अपॉन फ्रीक्वेंसी क्या है जरा देखो उस स्लॉट में, that is 35, 30 upon 35 into L2 minus L1, that is 60 minus 40. ठीक है, तो ये हो जाएगा. अब आप कैलकुलेट करो, आपको P20 मिल जाएगा. 40 प्लस 48 minus 15, this is 33 upon 35, this is 60 minus 40, this is 20. जो चीज कैंसिल हो रहा है करो, 5 के टेबल में आ रहा है, 5 4 जा 5 7 जा, देन इट विल बी 40 प्लस, ये क्या हो जाएगा 33 into 4 upon 7, so this becomes 40 plus 132 divided by 7. तो 132 डिवाइड बाई 7 आपको करना पड़ेगा.
18.857 40 plus 18.857 I will consider 18.86 थर्ड डिजिट 7 है ना, so I will round off second digit, so this will be, if your total is 58.86. okay, so you got P20 as 58.86 inches. स्टूडेंट्स, ये हो गया क्वेश्चन अबाउट डिसाइल एज वेल एज एक आपने परसेंटाइल भी उसमें ढूंढ लिया है अबाउट ग्रुप्ड डेटा हैविंग क्लास इंटरवल. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम. क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6, कैलकुलेट D4 एंड P48 फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा. ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स. यहाँ पे आप देखो, आपको क्लास इंटरवल नहीं दिया है. और एक बात और, ये डेटा देख के आप ऐसा भी मत बोलना कि ये डिस्क्रीट टाइप डेटा है, क्योंकि क्लास इंटरवल नहीं है तो कोई भी बोलेगा सर इधर डायरेक्ट वैल्यू एक्स की दी हुई है. नो, आप पढ़ो, यहाँ मिड वैल्यू लिखा हुआ है. व्हाट डू यू मीन बाय द मिड वैल्यू? ओके, दो वैल्यू का कोई एक बीच का वैल्यू आपको अवेलेबल किया है. ये दो वैल्यू है, उसके बीच का आपको वैल्यू अवेलेबल किया हुआ है. तो ये मिड वैल्यू है. तो आपको क्या करना है, इसमें से ये दो वैल्यू का क्लास इंटरवल आपको ढूंढ के बताना है. सो 2.5 कोई एक ऐसा क्लास इंटरवल है उस जिसका मिड वैल्यू है. 7.5 भी एक ऐसा मिड वैल्यू है जिसका क्लास इंटरवल आपको ढूंढना है. वैसे 12.5, 17.5 एंड 22, ये सभी वैल्यू, ये मिडल वैल्यू अवेलेबल किया हुआ है और सभी के लिए आपको क्लास इंटरवल ढूंढने हैं. सबके क्लास इंटरवल कंसीडर करके लेने हैं. तो ये कैसे करना है आपको, जो मैं आपको एक इसका ट्रिक बता देता हूं. क्योंकि आप लोग देख रहे हैं कि ये 2.5 नेक्स्ट इज 7.5 नेक्स्ट इज 12.5 ऐसा. तो आप जरा ढूंढ लीजिए 2.5 और 7.5 के बीच में कितने का डिफरेंस है. दैट इज 5 यूनिट का डिफरेंस है. अब ये जो 5 का डिफरेंस है उसको आप आधा आधा बांट लीजिए. आधा आधा इन द सेंस 5 को आप आधा आधा बांटेंगे तो 2.5 ईच. अब ये 2.5 आपको क्या करना है, आपका पहला वैल्यू है 2.5, उसमें आपको 2.5 लेस करना है और 2.5 ऐड करना है. तो क्या बन जाएगा, तो 2.5 में माइनस 2.5 करेंगे तो 0 बनेगा और 2.5 में प्लस 2.5 करेगा तो 5 बन जाएगा. ये आपका क्लास इंटरवल आ गया 0 to 5. अच्छा, दूसरे वैल्यू के लिए भी ट्राई करिए आप. 7.5 है ना दूसरा वैल्यू, 7.5 उसके लिए भी ट्राई करिए. इसमें 2.5 माइनस कीजिए और 2.5 ऐड कीजिए. so when you deduct 2.5 7.5, okay, you will get 5, and if you add 2.5 in 7.5, yes, you will get 10. तो ये पहला क्लास इंटरवल रेडी हो गया, दूसरा क्लास इंटरवल रेडी हो गया. अब आप सबके लिए ऐसा करेंगे तो आपको क्लास इंटरवल आपकी रेडी हो जाएगी. लेकिन आप थोड़ा कॉमन सेंस से बात करो, आपको ये जजमेंट मिलता है कि 0 to 5 हुआ, ये 5 to 10 हुआ, तो नेक्स्ट विल बी 10 to 15, नेक्स्ट विल बी
15 to 20. Next will be 20 to 25. Are you getting? And मेरे को लगता है देखो 22.5 is the last, so 20 to 25 will be also a last class interval. Students, are you getting? Technique समझे आपको? How do we get the class interval from the mid value given in the question? तो डायरेक्टली आप ये मिड वैल्यू को डिस्क्रीट डेटा के हिसाब से कंसीडर करके स्टार्ट कर दोगे, आप आंसर लेके आओगे, वो गलत हो जाएगा, बिकॉज दिस इज अ मिड वैल्यू प्रोवाइडेड हियर, एंड फ्रॉम मिड वैल्यू यू नीड टू ऑब्टेन क्लास इंटरवल, and this class interval, after finding this class interval, only you have to start your calculation about partition values. So what you have to find, calculate D4 and P48. ये तो आप बाद में कैलकुलेट करना शुरू करोगे, पहले आपको इस डेटा में से इस तरह से क्लास इंटरवल को प्रॉपरली फाइंड आउट कर लेना है. आर गेटिंग स्टूडेंट्स? So now we are moving further to make properly a particular table, and this you can do it in roughly, because this is not a part of solution, just you have to consider class intervals by your common sense or any particular method which I have shown. आपको ओरली भी पता चल सकता है, इसमें ऐसा नहीं है कि आप डायरेक्टली अभी जजमेंट नहीं ले पाओगे. यू कैन गेट डायरेक्ट जजमेंट ऑल्सो आफ्टर लुकिंग टू दिस लॉजिक, हाउ वी आर गोइंग टू find out the proper class interval. Students, now let me start with the table. Please prepare these columns. See here students, I have shown one column more as such to get the class interval, and importantly, after making that class interval you need to prepare less than CF column as usual, because it is our requirement. So have proper columns. चलिए स्टूडेंट्स, सबसे पहला मैं कॉलम एज यूजुअल बना रहा हूं जो है मिड वैल्यू के पॉइंट ऑफ व्यू दिया हुआ है. मिड वैल्यूज, एंड नेक्स्ट इज क्लास इंटरवल के लिए मैं बाद में कॉलम बनाता हूं. नेक्स्ट जो फ्रीक्वेंसी उन्होंने दिया हुआ है मैं एज यूजुअल बना लेता हूं. And here I am making a column about actual class interval, and this last column less than CF, less than cumulative frequency column. Are you getting students? One column here we are preparing more due to this given mid values. I am showing it. Students, आपको जो मिड वैल्यू का कॉलम नहीं बनाना है और डायरेक्ट आप एक्चुअल क्लास इंटरवल बना सकते हो, then also no problem. Don't prepare then mid value column as per your choice. This is as such a first question like this we are doing, so I would like to prepare this mid value column also. Okay students, start writing the information as usual. Given mid values 2.5, 7.5, 12.5, 17.5, 22.5. okay, next you prepare frequency ka, and frequency column is also given 7, 18, 25, 30, 20. And student, you have provided total, it is okay, you can also find out its total, but it is given readily in the question. Now we are going to prepare actual class interval. As we have made this calculation, I have shown this roughly, that way we will go 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20,
20 to 25. And lastly we are going to prepare less than cumulative frequency. यहाँ है frequency column students. देखो order column का change होने से उसकी कोई वैल्यू चेंज नहीं हो जाने वाली है, उसका इंपॉर्टेंस वही रहने वाला है. बट ऐसा कोई फिक्स आप पहले से ऑर्डर पकड़ के नहीं चलेंगे, मेरे कॉलम की जो ऑर्डर है जैसे पहले से होती थी वैसे ही होनी चाहिए. कॉलम का ऑर्डर आगे पीछे होगा, उससे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है. आप ये माइंड में पकड़ कर चलो कि व्हाट इज रिक्वायर्ड फॉर्मूला में, या जो भी हम फाइंड आउट कर रहे हैं उसके लिए मुझे क्या कॉलम की जरूरत पड़ती है, वो कॉलम आपको प्रिपेयर करना है. फिर वो सेकंड कॉलम में प्रिपेयर आपका हुआ या थर्ड कॉलम में हुआ, दैट इज लीस्ट इंपॉर्टेंट, उससे कोई लेना देना नहीं है. बट दैट इंफॉर्मेशन यू सपोज टू नो, तो उसके लिए आपको कॉलम तो बनाना है. ऑर्डर इज नॉट इम्पॉर्टेंट. तो 7 plus 18 less than cumulative, that is 25. 25 plus 25, this will be 50, and then 50 plus 30, 80, and 80 plus 20, it is 100. So this 100 is coming here, total is 100. So here I will write capital N, that is sigma F is equals to 100. And now I would start finding required partition values. That is, first we are to find D4, fourth decile. First D4, and for that first I will find D4 class. D4 class. What is the formula, students? 4 into n upon 10th value. अब स्टूडेंट ये मिड वैल्यू वाला जो कॉलम है इसका कोई हमें जरूरत नहीं है, लेकिन उसकी इंपॉर्टेंस स्टार्टिंग में थी क्योंकि उसके ही मदद से हमको क्लास इंटरवल मिला है. और एक बार क्लास इंटरवल मिल गया फिर वो मिड वैल्यू की कोई हमें कैलकुलेशन में जरूरत नहीं पड़ने वाली है. तो स्टूडेंट 4 into what is n, 100 upon 10th value, 10 cancel, 10 into 4 which is 40th value, 40th value. Now this 40th value I would see in less than CF column. इसके बाद आता है students 40 will come after 25 but before 50. So this is a slot. This is a slot which is our particularly D4 class. D4 class. ऐसे तो मिड वैल्यू की कोई जरूरत नहीं है तो उसको हाईलाइट नहीं भी करेंगे तो चलेगा. So now I am getting this is 10 to 15 is my D4 class where this lower limit and upper limit respectively. Frequency is 25 and CF value is previous value of 50, that is 25. So I will write first here D4 class is 10 to 15, 10 to 15, and now I would apply formula for D4. What is the formula, student? L1 plus 4 into n upon 10 minus CF upon F L2 minus L1. Now, what is L1 here? Student, this is 10. Substitute करते जाओ students. And 4 into n upon 10, that is going to come 40. 40 minus CF value is, I have highlighted here 25 is our CF value. 25 upon frequency क्या है students? 25. और L2 minus L1, that is 15 minus 10 is our L2 minus L1. So now this becomes 10 plus 40 minus 25, this is 15 upon 25 into 15 minus 10, this is 5. So you can cancel this
5 with 25, 5 5s are, and 5 3s are, and as result final answer will be 10 plus 3 is equals to 13. Therefore, D4 is equals to 13 units. So this way we got D4. Now next we have to obtain P48, that is 48th percentile. P48. For this we require 48th percentile class, that is P48 class. तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 48 इंटू n अपॉन 100. तो 48 इंटू 100 अपॉन 100, कैपिटल N 100 है ना. So this way this will be going to cancel, and finally it is 48th value. 48th value. तो स्टूडेंट्स अब हमको देखना है 48th वैल्यू किसके बाद आएगा. अगेन 25 के बाद आएगा स्टूडेंट्स, and before 50 it will come. So the same class it will be for P48. सेम क्लास है, मतलब लोअर लिमिट अपर लिमिट वही रहेगा, फ्रीक्वेंसी भी वही रहेगी, ये जो CF की वैल्यू है वो भी सेम रहेगी, एवरीथिंग विल बी सेम. तो फॉर्मूला अलग है तो उसके हिसाब से आपको कैलकुलेशन करके देखना है. देयरफॉर P48 class is 10 to 15. Okay, now apply formula. P48 is equals to L1 plus 48 into n upon 100 minus CF whole upon F into L2 minus L1. तो लोअर लिमिट है 10 प्लस 48 इंटू एन अपॉन 100, मतलब ये फाइंड जो ऑलरेडी किया है P48 क्लास 48 एज इट इज. CF जो है टेबल में 50 का प्रीवियस वैल्यू 25 और फ्रीक्वेंसी जो है दैट इज 25 and lower limit minus upper limit 15 minus 10. So this will be 10 plus 48 minus 25, that is 23 upon 25 into 5. ये 5 से कैंसिल हो जाएगा, and this is 10 plus 23 upon 5. अब मैं क्या करता हूँ, इस नीचे डिनोमिनेटर को 10 बना देता हूँ, इसको मल्टीप्लाई बाई 2 करूंगा, तो इसको भी मुझे न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई बाई 2 करना पड़ेगा. तो इट विल बिकम 10 प्लस 46 अपॉन 10. तो डायरेक्टली क्या डेसिमल अप्लाई हो सकता है ना, 4.6, and as a result it will be 14.6. Therefore the value of P48 P48 value of P48 is equals to 14.6 units. Okay.
Coming to the question number 5th. The following frequency distribution shows the weight of students in a class. डेटा देख के स्टार्टिंग से तो अपने को ऐसा ही लगेगा ये डिस्क्रीट डेटा है, और ये डिस्क्रीट डेटा ही है, बिकॉज वेट इज प्रोवाइडेड नॉट इन टर्म्स ऑफ जैसे आगे था मिड वैल्यू, ऐसा कुछ बोला नहीं है। तो ये वेट एग्जैक्टली 40, 45, 50, 50 ऐसा कंसिडर हो रहा है। तो दिस इज डिस्क्रीट डेटा एंड करस्पॉन्डिंग नंबर ऑफ स्टूडेंट फ्रीक्वेंसीज आर गिवन। दिस इज एफ and this is x, and this is therefore discrete data. Okay, now what we have to find? A, find the percentage of student whose weight is more than 50 kg. मैं आपको इस तरह से डायरेक्टली पूछा है कि ऊपर आप फ्रीक्वेंसी देखो स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के हिसाब से, और उनके वेट का डिस्ट्रीब्यूशन दिया है, और आपको पूछा हुआ है कि परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स whose weight is more than 50 kg. तो पहले तो मुझे ये बताइए, ये पूरा नंबर ऑफ स्टूडेंट का डेटा दिया है, कितना है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, कितने हैं? टेल मी, इज इट 120? दिस इज कैपिटल N, दैट इज सिग्मा F, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो टोटल 120 स्टूडेंट्स हैं, उसमें से 50 से ज्यादा वेट जिसका है, ऐसे कितने बच्चे रहेंगे? तो 50 मोर देन 50 बोल रहे हैं, वेट इज मोर देन 50 का मतलब 50 से ज्यादा। तो 55, 60, 65 ये हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं? तो ये तीन 50, 55, 60 एंड 65 वेट वाले कितने स्टूडेंट हो जाएंगे? इसके करस्पॉन्डिंग नंबर ऑफ स्टूडेंट को आप टोटल करिए। ओके, ये इंफॉर्मेशन मैं यहाँ पे लिखता हूँ, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स having weight more than 50 kg is equals to, तो कितना है देख लो, टोटल करिए ये तीनों का, 21 plus 10 plus 5, 21 plus 10 plus 5, that is equals to 36। कितने स्टूडेंट है? 36 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिसके आप वेट 50 kg से ज्यादा है। तो 36 स्टूडेंट ऐसे हैं, कितने में से? टोटल 120 में से। सो हमें तो उन्होंने पूछा है कि फाइंड आउट देयर परसेंटेज, तो हमें परसेंटेज स्टूडेंट पूछा है। तो हियर I would like to write this information: total number of students is equals to 120. Total number of students is 120, and number of students having weight more than 50 kg is equals to 36. ठीक है? So we have to find percentage of students having weight more than 50 kg. So you can find by this formula. परसेंटेज ढूंढना है अभी स्टूडेंट, सिर्फ परसेंटेज कैसे हम निकालते हैं वो लॉजिक अप्लाई करना है। परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स
having weight more than 50 kg is equals to actual number of students having weight more than 50 kg divided by total number of students into 100 तो ये कैसे आप सब्स्टिट्यूट कर दो एक्चुअल स्टूडेंट्स जिनका वेट 50 से ज्यादा है वो मैंने लिखा है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैविंग ये रहा 36 टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैविंग वेट मोर देन 50 kg वैसे कितने बच्चे हैं 36 सब्स्टिट्यूट करो 36 अपॉन नीचे डिनोमिनेटर में क्या है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने में से हैं 120 एंड मल्टीप्लाई बाय 100 ये जैसे आप लोग क्रॉस मल्टीप्लाई वैसे सिस्टम से भी कर सकते हैं जैसे out of 120 36 students are there having weight 50 more than 50 kg so out of 100 कितने हो जाएंगे so if you do this cross multiplication this will be 100 into 36 upon 120 है तो ये हो गया ना 100 into 36 upon 120 यही स्टेप आया कि नहीं जो मैंने फॉर्मूला लिखा है तो 10 we cancel 12 3 and this 3 into 10 this is our answer 30%. 30%. So this is not in terms of calculation as far as partition value is concerned, but they have asked to find out just the number of students and its percentage as per the required weight. The understanding based question हुआ A question is done. Now in B question they have said if the weight column provided is of mid values. Again students they are talking about mid values. See mid values. किसके लिए बात कर रहे हैं weight column. ये जो weight आपको column दिया हुआ है ये जो सब आपको information दी है they are saying that consider these are the mid values. तो ये स्टूडेंट मिड वैल्यू हो गए तो इसके ऊपर से हमको क्लास इंटरवल ढूंढने पड़ेंगे एक बात फिक्स है तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड द क्लास इंटरवल अब नेक्स्ट उन्होंने पूछा है देन फाइंड द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स हुज वेट इज मोर देन 50 kg तो आपको परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट पूछा है कि जिनका 50 किलो से वेट ज्यादा है मोर देन 50 in that case what we will do that we'll discuss before we first find the class interval हम लोग पहले class interval ढूंढ लेते हैं so पहले तो आपको जो ये mid value दिए हुए हैं mid values they are starting from 40 then 45 then 50 then 55 and so on now what I am saying let first find its difference that is 5 units and then split into two parts that is 2.5 2.5 and what you will do this 2.5 you deduct and this 2.5 you add in this 40 and so on for each and every mid values you do these things so if I minus 2.5 in 40 I will have 37.5 and in 40 only I will add 2.5 then I will get 42.5 and as a result I am getting this as
a class interval, specific class interval of this mid value 40. Then in 45, the same thing if I do, then minus 2.5 if I do, then I get 42.5. And in 45, I add 2.5, then I will get 47.5. And so on. Next in 50, 55, जितने भी mid value है, सभी के लिए आप ऐसे करेंगे तो आपको proper class interval मिल जाएंगे. Are you getting? So these class intervals are needed. So before I get into the calculation what is required, they've asked, उसको भी मुझे समझना बाकी है, लेकिन उससे पहले मैं मेरा डेटा जो क्लास इंटरवल के पैटर्न में मुझे मिलने वाला है वो मैं रेडी कर देता हूँ. सो इन दिस पर्टिकुलर टेबल एज यूजुअल, जैसे देखो हमने लास्ट क्वेश्चन में भी इस तरह से 4 कॉलम ड्रॉ किया था जिसमें एक मिड वैल्यू था. तो वेरी फर्स्ट कॉलम दैट इज अबाउट वेट इन केजी, इट इज आवर मिड वैल्यूज. ये उन्होंने टेबल में नहीं लिखा है, लेकिन उन्होंने ये बी केस के अंदर मेंशन किया है, एंड देयरफॉर वी हैव टू टेक दैट वैल्यूज एज अ मिड वैल्यूज. देन एज यूजुअल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के हिसाब से फ्रीक्वेंसी की कॉलम आ जाएगी. नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, this is a frequency column, and then I will be going to prepare actual class intervals as I have discussed here roughly how to get these class intervals. And then after this class interval I will have to prepare less than cumulative frequency column, less than cumulative frequency, that is our requirement. So now let me begin with these mid values, which is given 40, 45, 50, 55, 60, 65, and the corresponding number of students 15, 40, 29, 21, 10 and 5. So first जो 40 था उसका क्लास इंटरवल क्या आया था? 37.5 to 42.5. 37.5 to 42.5. Then 42.5 to 47.5. 42.5 to 47.5. Then as यूजुअल आप इसका 2.5 का जो कैलकुलेशन मैंने बताया ऊपर, उस तरह से आप क्लास इंटरवल क्रिएट करते जाइए. नेक्स्ट इज 50, तो 50 में 2.5 लेस करेंगे तो क्या हो जाएगा 47.5. टू in that 50 if you add 2.5 then it will become 52.5. next 52.5 to 57.5. next will become 57.5 to 62.5, and lastly 62.5 to 67.5. and this way we are going to have actual class interval. next लेस देन CF हमको बनाना है स्टूडेंट्स, वो फ्रीक्वेंसी कॉलम में से बन जाएगा. so here 15 plus 40, that is 55, then 55 plus 29, and this is 84. 84 plus next is 21, that will be 105. 105. next 105 plus 10, 115, and then plus 5, 120. as a result, this total of frequency will also 120.
ये टेबल हमारा फुलफिल हो गया, क्लास इंटरवल के बेसिस पे पूरा प्रॉपरली कंस्ट्रक्शन हो गया है। अब जो उन्होंने स्टेटमेंट पूछा है स्टूडेंट्स, यहाँ उसके बारे में थोड़ा हमें चर्चा करनी है। उन्होंने क्वेश्चन में क्या दिया है, फाइंड द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स। पहले तो यहाँ मैं लिख लेता हूँ, हियर कैपिटल N इज इक्वल टू सिग्मा F इज इक्वल टू 120। नाउ सिंस वी हैव टू फाइंड, ये बहुत क्लियर करना है, ये जो स्टेटमेंट उन्होंने दिया है, सिंस वी हैव टू फाइंड द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स, percentage of students whose weight is more than 50 kg, या ना, देखा लिखा है वहां, weight is more than 50 kg. So let us take this is our distribution of 100% students, और मैं उसको स्पेसिफाई करके लिखूं तो मैं ब्रैकेट में लिख सकता हूं, इंफॉर्मेशन of 100% students about their weight in ascending order. मेरा स्टूडेंट, इसको बराबर से आप लोग कंसीडर करो। दिस इज व्हाट 100% स्टूडेंट, जो पूरा मैंने डायग्राम ड्रॉ किया है, दिस इज ऑल 100% स्टूडेंट की क्वांटिटी जो है, जैसे कि हम एक्चुअल क्वांटिटी की बात करें तो 120 स्टूडेंट्स हैं, दैट 120 स्टूडेंट्स इज माय 100% कैपेसिटी। हम नॉर्मली बोलते हैं ना, समझो क्लास में 120 स्टूडेंट्स हैं और 120 के 120 प्रेजेंट है, then what we will say that 100% presence is there, 100% present is there. So ये 120 student actual है, but here in terms of percentage I will call it as 100% students, and this 100% students which is shown in this diagram, it is about their weight. It is shown information about their weight, and that is been in ascending order. और हमने ऐसे ही नहीं उसको दिखा दिया हुआ है, ये जो इंफॉर्मेशन हमने यहाँ पे शो किया हुआ है, दिस इज इन असेंडिंग ऑर्डर। तो यहाँ से जैसे हम ऊपर चलते जाएंगे, है ना, ऐसे जितना ऊपर जाएंगे वो ज्यादा वेट वाले स्टूडेंट्स होंगे। यहाँ जो एकदम टॉप पे होगा वो एकदम ही मैक्सिमम वेट वाला स्टूडेंट होगा, है ना, और यहाँ जो बॉटम पे जितने स्टूडेंट्स होंगे वो एकदम लेस वेट वाले स्टूडेंट्स होंगे। ठीक है, आई एम नॉट going in that detail. What is exactly they have asked? We have to find percentage of students whose weight is more than 50 kg, more than 50 kg. अब आपका स्टार्टिंग वेट ही शुरू हुआ है 40 से और एंडिंग हो रहा है 65, तो मैक्सिमम इज 65, सो बीच में 50 आ जा रहा है, बीच में 50 आ जा रहा है, सो लेट अस कंसीडर दैट द 50 kg इज हियर। ध्यान से समझना,
50 kg. Okay. So if this is a total 100%, then here it will be which percentile? This 50 kg is which percentile? I don't know. तो यहां पे ये 50 kg जो हमको दिया है, this is given answer of a particular percentile. स्टूडेंट ध्यान से समझना, ये कोई तो ये पॉइंट पे कोई तो परसेंटाइल होगा 50 kg के लेवल पे, कुछ स्पेसिफिक पर्टिकुलर परसेंटाइल होगा ना, बट दैट विच पर्टिकुलर परसेंटाइल इट विल बी देयर, आई डोंट नो. सो what I'm going to assume, let eighth percentile is 50 kg, and therefore what I am going to conclude, pk is equals to 50 kg. Now if this pk is 50, by using this information I would like to know वो k यहाँ जो है kth percentile, this 50 kg is equals to pk. तो इस हिसाब से आप सॉल्व करके k का वैल्यू ढूंढ लीजिए. व्हाट आई विल फाइंड, वैल्यू ऑफ k. स्टूडेंट एज आई फाइंड k, मुझे पता चल जाएगा कि kth परसेंटाइल क्या लेवल बनता है. और मैं आपको पहले ही डिस्कशन में लिया है कि ये जब भी पार्टीशन वैल्यू कोई भी हम फाइंड करते हैं तो ये डेटा असेंडिंग ऑर्डर में होता है. तो यहाँ जो शुरुआत से हमें मिलता है फ्रॉम बॉटम लेवल, या 50 किलो के लेवल पे मैं अटक जाऊंगा, रुक जाऊंगा. सो दिस मच प्रपोर्शन, दिस मच प्रपोर्शन, ये कितना परसेंटाइल होगा, दैट मुझे के का वैल्यू मिलेगा. लेवल, क्योंकि मैं यहाँ के पे आया ना, ये जो लेवल है वो केथ लेवल है, केथ परसेंटाइल लेवल है. लेट मी शो इन दिस color. This is the kth percentile, and as this much part is k percentage, then what will be the rest? That means 50 kg के ऊपर कितना परसेंटेज होगा, मोर देन 50. क्योंकि 50 kg के नीचे का वैल्यू k रहेगा, 50 kg के नीचे k परसेंटाइल है, तो 50 kg के ऊपर कितना परसेंटाइल है. लेट मी राइट दैट स्टेटमेंट टू, ये आपको अच्छे से समझेगा. If k percentage students are having less than 50 kg weight, then
how much percentage students are having weight more than 50 kg. तो वापस वही डायग्राम मैं सामने ला रहा हूं आपके। ये है पीके विच इज 50 और इतना परसेंटेज स्टूडेंट्स रहेंगे वेट लेस देन 50 kg। तो ये बाकी के जो होंगे ना, दैट इज वी माई कॉल एज बैलेंसिंग। बैलेंसिंग इन द सेंस पूरे में से इतने माइनस कर दो नीचे के, तो ऊपर के मिल जाएंगे इतने। दीज आर weight more than 50 kg। तो ये कितने परसेंटेज रहेंगे स्टूडेंट्स? तो इसके कितने परसेंटेज रहेंगे पहले ये निकाल लो। समझो ये 20% है, तो ये बाकी के 80% होंगे कि नहीं होंगे? एग्जाम्पल, सपोज ये बिलो वाले 40% है, तो ये अबो वाले 60% बैलेंसिंग रेस्ट हो जाएंगे कि नहीं? टोटल मिलके 100% होता है कि नहीं होता है? सो मुझे ये पहले के का वैल्यू ढूंढो, के परसेंटाइल यहाँ क्या होना है। तो ये जो 40% है ना, तो बट ऑब्वियस है ये P40 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? P40 हो जाएगा, बिकॉज के का वैल्यू 40 आ गया। सो ये एक एग्जाम्पल था स्टूडेंट्स, इट्स नॉट लाइक दैट कि ये 40 होएगा। सो हियर वी आर मेकिंग assumption, हमने रखा हुआ है, देखो, that k percentile is 50 kg, that is pk is equal to 50। और अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ since pk is equal to 50 है ना, और 50 हमको परसेंटाइल का आंसर मिला हुआ है। सो परसेंटाइल का आंसर तुमको मालूम है 50। जरा टेबल में आओ तो, इफ वी नो द k percentile weight is 50, which will be going to appear in this class interval, isn't it? 47.5 to 52.5 के बीच में आता है ना 50। So if this 50 is lying in this particular class interval, then this is my PK class 47.5 to, therefore PK class is equal to 47.5 to 52.5. Okay students, and therefore I am going to get each and every information that is for frequency, lower limit, upper limit, और इसके ऊपर का ये जो वैल्यू होगा 55, which is my CF value, and everything now you have to substitute in the formula because we are looking to find K। हमें K find करना है, and therefore PK formula L1 plus K into N upon 100 minus CF upon F into L2 minus L1
Okay, so we will substitute in this pk. It is 50. So pk की जगह पे 50. L1 lower limit 47.5 plus k into n upon 100, that is k as it is because k तो हमें फाइंड आउट करना है. n जो था टोटल 120 है ना, अपॉन 100 माइनस व्हाट वाज द cf वैल्यू. cf वैल्यू हमने यहाँ पे मार्क करके रखा हुआ है 55. And what is the frequency value? 29 into low upper limit minus lower limit. 52.5 minus 47 point. Now student, just you have to simplify it. आपको कैलकुलेट करना है प्रॉपरली ताकि k का वैल्यू मिल जाए. यहाँ जरा ध्यान रखने का है, कैलकुलेशन में बहुत सी मिस्टेक कर देते हैं स्टूडेंट्स. और पहले तो यहाँ देखो, ये 47.5 जो है वो एडिशन में है, उसको लेफ्ट हैंड साइड लेके आइए. तो दिस विल बिकम 50 minus 47.5 and rest in the right hand side you simplify it. This is 10, it will be cancelled. This is 12 upon 10, that is 1.2 k minus 55, इसको ब्रैकेट में रखना, अपॉन 29 and 52.5 minus 47.5, it will give 5. ओके, अब आप यहाँ देखो, ये 29 डिवीजन में है, उसको आप लेफ्ट हैंड साइड लेके जाएंगे, इट विल बी इन द मल्टीप्लीकेशन एंड दिस 5 इज इन द मल्टीप्लीकेशन. लेफ्ट हैंड साइड आप इसको लेके जाओगे तो इट विल बी इन द डिवीजन. साथ में यहाँ 50 माइनस 47.5, ये आप कैलकुलेट करो, दिस बिकम्स 2.5. यहाँ से अपने 20 लाइन लेके आए हैं तो इट विल बिकम इन मल्टीप्लीकेशन रिलेशन एंड अपॉन 5 equals to 1.2k minus 55. Okay students, ये 5 से कैंसिल हो जाएगा, it will be 0.5 and 0.5 into 29, this is 14.5. और ये आप minus 55 को लेफ्ट हैंड साइड लेके आओ, so it will become plus 55, which is equals to 1.2k. Therefore 14.5 plus 55, it becomes 69.5 is equals to 1.2k. Therefore 69.5 upon 1.2 is equals to k, and therefore k is equals to, what will be my conclusion? k का वैल्यू क्या हो जाएगा? 69.5. पॉइंट के बाद 5 एक ही डिजिट है, नीचे भी डिनोमिनेटर में 1.2, पॉइंट के बाद 2 एक ही डिजिट है, so you can cancel that point. So it will be 695 divided by 12. Now you have to divide 5 as 60, 39, 95, 95, 7 are 84. It is going to be 11. Take a point, 0, 110, 108, 2, 20, 12, 8, 80. 6 आगे मैं नहीं कर रहा हूँ, 3 डिजिट लिया हुआ है, तीसरे डिजिट पे मैं देख रहा हूँ 6 है. 5 या तो 5 से ज्यादा है तो प्रीवियस डिजिट यू हैव टू increase by 1, so it will be 92. So 57.92. Okay, 57.92,
and this is information of K which I have assumed K percentage students. अब मैं इसको राउंड ऑफ कंसिडर करते हुए अप्रोक्सीमेटली इसको क्या बोलते हैं हम, अप्रोक्स, and that is I am going to consider as a 58. This is the K, that K I have assumed in terms of percentage. So now this is answer 58 in terms of percentage. So what I will say here, hence please write down this note properly because यही आपको proper understanding देगा और जो exact answer हमको ढूंढना है अभी आना बाकी है. It is not going to be concluded here. It is not last final answer. So here, hence 58 percentage students have weight less than 50 kg, or you may say below 50 kg. Which means total 100% minus 58%, which is equals to 42 percentage students have weight more than 50 kg of weight. आप डायग्राम का हिसाब से वापस से देखिए, मुझे ये जो K मिला है, let me show with this K I got, that is 58, and therefore ये जो PK है I would like to write as a P58 is equals to 50. मतलब यहाँ जो ये बिलो वाला हिसाब है ये कितना परसेंटेज होना है, this is going to be 58 percentage. And specifically ऊपर वाले कितने होंगे, 42. Entire 42 percentage. आप समझ रहे हैं अभी स्टूडेंट्स डायग्राम का हिसाब. तो अब देखो मेरा जो पूरा डायग्राम है वो 42 लिखा हुआ है, उसके बाजू मैंने एरो करके लिखा हुआ है वेट मोर देन 50 kg. तो ये डायग्राम जो बन रहा है ना, दैट इज द डायग्राम फॉर 100% स्टूडेंट्स अबाउट देयर वेट. इसे मैंने प्रीवियस में भी डायग्राम बनाया था, प्रीवियस पेज पे देखो. So as finally I got this K as a 58 percentage, whereas this entire part I got as 42 percentage. This diagram is perfect to know understand this question. ये रिवर्स क्वेश्चन है स्टूडेंट्स. आपको अभी तक परसेंटाइल फाइंड करने के लिए पूछते थे, 58 परसेंटाइल जो पूछते हैं ना इन लोग फाइंड करने को, तो आपका आंसर आता 50 kg. ये सीधा सीधा क्वेश्चन हो गया, स्ट्रेट फॉरवर्ड. बट नाउ दे आर आस्किंग दैट 50 kg कौन सा परसेंटाइल होगा. ओके, so that particular percentile, 58 percentile, will have less than 50 kg of students. Number of students जो percentage में है, 58% students have weight less than 50 kg, and hence
बाकी के 58 के ऊपर के बाकी के जो है तो 42% स्टूडेंट्स, उनका वेट जो होगा वो 50 केजी से ज्यादा होगा. Are you getting? This is very, very, very important question, and this is, you can say, a level apart type of question. It's not a normal way of question that usually we use formula and just we solve for any kind of partition value, quartile, decile percent. Not that way. This is reverse type of question, and then again they have asked that more than वाला जो part है ना, that was important. So less than वाला part मिलता है, वो more than के लिए उसको 100 में से क्या करना पड़ता है, minus. So students, ये conclusion के साथ हमने properly end किया हुआ है. Please go through all the questions, specifically this one, importantly, and practice again. Thank you, friends.